بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت حیران پریشان تھی کہ میرے والد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہمیشہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا اور اب مجھے رخصت کر کے اپنے دشمن کے گھر بھیج دیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں ہزاروں خوف اور وسوسے تھے۔ اچانک پورے گھر میں شور اٹھا کہ میرا دلہا غائب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے زور سے دھچکا لگا۔ میں بے حد پریشان اور حیران تھی۔ اسی وقت میرے کمرے میں میری ساس آئی اور اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کر لائی۔ میں کبھی اپنی ساس کو تو کبھی ڈبے کو دیکھتی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ میں اس ڈبے کو 30 دن تک سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھوں۔ بہت جلد میرا شوہر لوٹ آئے گا، اور اگر میں نے اس ڈبے کو اپنے پاس نہیں رکھا تو میرا شوہر کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو گئی کہ آخر اس ڈبے میں کیا ہے اور میرا شوہر کہاں غائب ہو گیا ہے، جو کہ تبھی آئے گا جب میں اس ڈبے کو اپنے پاس رکھوں گی۔ لیکن میں نے چپ چاپ ان سے ڈبہ پکڑ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ پورے گھر پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے مہمان سوچ رہے تھے کہ میرا شوہر کہاں جا سکتا ہے، لیکن میرے سسر کے ڈر سے وہ سب لوگ خاموش تھے۔ رات کو جب میں سونے لگی تو میں نے اس ڈبے کو اپنے تکیے کے پاس رکھا اور سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا جسم بہت بھاری بھاری تھا۔ جسم کے پور پور میں درد تھا۔ مجھے لگا کہ شادی کی تھکاوٹ ہے اور اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، اور فریش ہونے کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو بہت سارے مہمان اب بھی گھر میں موجود تھے۔ کچھ چائے منگوئیاں کر رہے تھے۔ جب ایک لڑکی کی باتیں میرے کانوں میں پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے باپ میرے ساتھ اس قدر زیادتی کیسے کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ دلہن پر روب ڈالنے کے لیے جب کبوتر کو لایا گیا تو دلہن نے کبوتر کو پکڑا اور اڑا دیا، اس کی گردن سے کاٹنے سے انکار کر دیا، اور دلہا دلاور نہ ہی نئے کپڑے پہن رہا تھا اور نہ ہی وہ بارات لے کر جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ پاگل ہے، ہر وقت پورے گاؤں میں پھرتا رہتا ہے، اور رات کو بھی اسی لیے بھاگ گیا کیونکہ وہ گھر میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، اور پتہ نہیں دلہن کے ماں باپ نے ایسا کیا دیکھا جو اس پاگل کے ساتھ اپنی ہور جیسی بیٹی بیاہ دی۔ بھلا اگر دلہے کا ذہنی توازن درست ہوتا تو وہ اپنی نئی نویل دلہن کو چھوڑ کر اس طرح جاتا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ کیا واقعی میرا شوہر پاگل ہے؟ میری ماں باپ نے میری شادی کس پاگل سے کی ہے؟ لیکن اس لڑکی کی باتیں سن کر لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں سچ بول رہی ہے۔ میں اپنے ماں باپ سے بہت ہی متنفر ہو گئی کہ انہوں نے میری شادی اپنے دشمنوں کے گھر میں، اور وہ بھی کسی پاگل کے ساتھ ہی کیوں کر دی۔ بہت سارے سوال میرے دماغ میں گڑبڑ ہو رہے تھے، لیکن میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے سسر اسد خان اس گاؤں کے سردار تھے، اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ تیسرے بیٹے کے ساتھ بیاہ کر میں آ گئی، جس کے بارے میں یہ باتیں سن رہی تھی کہ وہ پاگل ہے۔ میرے والد بھی اپنے گاؤں کے سردار تھے، جن کا نام شمشیر خان تھا۔ میرے والد کی اور سسر کی بہت سالوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، اور پھر یوں اچانک میری شادی اپنے دشمنوں کے گھر کر دی۔ بہت سی باتوں کا مجھے پتہ لگانا تھا۔ میرے سسرال میں میرے ساتھ ساس اور سسر کے علاوہ باقی سب کا رویہ حد آمیز تھا۔ میں بھی سردار کی بیٹی تھی۔ میں نے بھی کبھی کسی سے کوئی بات نہ کی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، سسر سخت تھے بہت، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر میں ساس سسر کی ہی چلتی تھی، ان کے آگے کسی کو بھی جرأت نہ تھی کہ کوئی بول پاتا۔ میں روزانہ رات کو وہ ڈبہ اپنے پاس رکھ کر سوتی، اور صبح کے وقت میرا جسم بہت بھاری بھاری ہوتا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی، لیکن اپنے شوہر کو واپس بلانے کے لیے میرے پاس اور کوئی ذریعہ بھی نہ تھا، اس لیے میں کافی چپ تھی۔ 5 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے شوہر کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں جب بھی اپنے شوہر کا نام لیا کرتی تھی تو سب لوگوں کے چہرے نفرت سے بھر جاتے تھے۔ اس کا نام سنتے ہی سب لوگ عجیب و غریب باتیں بناتے، اور مجھے حیرت ہوتی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے باہر سے ہی باتوں کی آواز آئی۔ جب میں نے باتوں پر توجہ دی تو میں حیرت میں ڈوب گئی۔ میری جیٹھانی بول رہی تھی، ان کے شوہر نے کہا ہے کہ جہاں بھی دلاور نظر آئے اسے مار دو، کبھی بھی حویلی میں نہ آنے دیا جائے۔ میرا چہرہ تو خوف سے پیلا پڑ گیا۔ میں بھاگی بھاگی اپنے سسر کے کمرے میں گئی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اور میری ساس بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ میرا پیلا چہرہ دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اٹکتے اٹکتے ساری بات بتا دی تو میری ساس کہنے لگی، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ میں بھی ان کی باتوں میں سر ہلا گئی، اور اب تو میں دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرے اندر بہت سے سوالات تھے
का जवाब कोई एक भी ना था। मैं सारा दिन यही सोचती रहती, आखिर इस डब्बे में क्या होगा? इसको मेरे पास रखने के लिए मेरा शोहर आएगा। मेरे जेठ मेरे शोहर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो उसे क्यों मारना चाहते हैं? अगर वो पागल है तो मेरा ससुर इतना खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं ढूंढता मेरे शोहर को? ये सब चीजें मुझे मिलकर बहुत परेशान करती थी और मैं छुटकारा पाने के लिए खुद को मसरूफ करना चाहा। मैं बचपन से ही कुरान पाक हिफ्ज करने का शौक था, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे दुनियावी तालीम दिलवा दी। लेकिन अब मैं अपना शौक पूरा कर सकती थी। मेरे दिल ने मुझे कहा कि मुझे ये शौक पूरा करना चाहिए। मैंने नुकरानी को बुलवाया और उससे पूछा, यहाँ कोई दीनी तालीमात देता है? तो उसने मुझे बताया कि मैं आपको पूछ कर बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन जब मेरी नौकरानी आई तो उसने मुझे बताया कि यहाँ साथ ही शहर में एक आलिम दीन की बेटी है जो बहुत अच्छी तालीमात देते हैं, आप उनके पास दाखिला ले लें। मैंने अपने सास ससुर से जब इजाज़त चाही तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें क्या बुराई है। मैंने जामिया जाना शुरू कर दिया। बहुत सी बुनियादी बातें सीखकर मुझे सुकून मिलता, लेकिन 5-6 दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो आंखें मुझे बहुत ध्यान से देखती हैं। मुझे समझ न लगी आखिर कौन मुझे छुप कर देख सकता है। मैंने इस बात का तज़किरा किसी से ना किया। रोज़ जामिया जाना और उसके बाद घर के थोड़े बहुत कामकाज, यही सब करते करते मेरा दिन गुजर जाता। रात को सोने से पहले जब वो डब्बा मैं अपने पास देखती तो मुझे याद आ जाता कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया है। क्या वाकई उन्होंने मेरी शादी किसी पागल से करवा दी और मैं सब्र के घूंट पीकर रह जाती। जामिया से वापसी के बाद ड्राइवर मुझे लेने के लिए आता था और मैं पिछले 1 घंटे से ड्राइवर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। मैं बेहद परेशान खड़ी थी। तभी मैंने देखा कि मेरी जामिया वाली बाजी के शोहर के साथ एक शख्स जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मैं उसे पहचान ना पाई। आखिर मैंने उसे कहाँ देखा है? मैं काफी देर तक उसे देखती रही, लेकिन मुझे फिर भी याद ना आया। थोड़ी देर के बाद मेरा ड्राइवर आ गया तो मैं उसके साथ चली गई। मैंने इन दिनों जामिया में आकर बहुत कुछ इस्लामी सीखा। मेरा दिल बहुत पुरसुकून था। ये फिजा ही इतनी ठंडी और मीठी थी कि इंसान खुद ब खुद पुरसुकून हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी बहुत परेशान करती थी। ऐसा लगता कि जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन आसपास नजर दौड़ाने पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कौन है। दूसरी बात, जब भी जोहर के वक्त का इंतजार करती और उसी अनजान शख्स का भी वहां से गुजर होता, मुझे ऐसा लगता कि मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे 25 दिन हो गए थे। ससुराल में अभी तक मेरे शोहर का कोई अता पता न था। आज मेरे वालिद और वालदा मेरे घर आए, लेकिन मैं अपने वालदैन को देखकर बहुत खुश हुई। मेरे वालदैन मुझे बार बार पूछ रहे थे कि तुम यहाँ खुश हो, तुम्हारा शोहर तुम्हारा ख्याल तो रखता है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। लेकिन फिर मैंने अपने ससुराल का मान रख लिया और अपने माँ बाप को कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वालदैन कभी भी मेरी वजह से परेशान हो जाए। मेरे ससुर ने मेरे वालिद को ये बताया कि मेरा शोहर किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ है। जब जाने लगे तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं बहुत मुतमईन हूँ कि उनकी बेटी अपने घर में खुशो खुर्म है। उनकी बात सुन के मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन मैंने उनके सामने एक आंसू भी नहीं बहाया। उन्हें बाखुशी खुशी रखसत किया। लेकिन आज जब मैं मदरसे से वापस आई तो मेरी नौकरानी मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रही थी। मैं बहुत हैरान हुई। उसने मुझे कहा कि आपको आपके सब्र का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे कहा, जिस डब्बे को आप हमा वक्त अपने साथ अपने तकिए के नीचे रखती हैं, उसी में तो आपके शोहर की जान बसती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स अपनी जान को आज़ाद करवाने के लिए वापस ना आए? बहुत जल्द आपका शोहर भी लौटने वाला है। मैंने उससे कहा, पहेलियों की तरह बात न करो, सीधी सीधी बात बताओ कि इस डब्बे में क्या है। तो वो कहने लगी, आप इसको खोलना मत, आपका शोहर बहुत जल्द लौट आएगा, उसके बाद खोल के देख लीजिएगा। मैं और ज्यादा हैरत में डूब गई। अब तो बस मुझे इंतजार था इसी बात का कि कब मेरा शोहर वापस लौटे और कब मुझे इन पहेलियों की समझ आए। कई बार दिल में ख्याल आया कि डब्बे को खोल के देखूं, लेकिन फिर ये सोचकर अपने दिल को झटक दिया कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो वाकई दिलावर को वापस ले आए। सुबह के वक्त जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई और मौजूद है। जब मैंने अपनी पूरी आंखें खोलकर देखा तो सामने देखकर मैं सकते में रह गई। ड्रेसिंग के सामने एक बहुत ही खूबसूरत लंबा चौड़ा मर्द अपनी तमाम तौर वजाहत के साथ खड़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज और उसके ऊपर शाल ओढ़े वो वाकई किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। उसे देखकर मैंने अपनी आंखें एक बार मसली और फिर दोबारा खोला। ये मेरा ख्वाब नहीं था, वो वाकई मेरे कमरे में खड़ा था। और फिर मेरे दिमाग में धमाका हुआ, आखिर ये अनजान शख्स यहाँ क्या कर रहा है? मुझे उठते देखकर वो मेरे बेड के करीब आया, मुझे सलाम किया
तो मैंने अनजान नजरों से उसकी तरफ देखा और सवाल पूछा कि वो कौन है। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका शौहर नामदार हूँ। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये अनजान शख्स जिसे मैं जामिया के बाहर देखती थी, कोई और नहीं, मेरा शौहर था। एक सवाल आन खड़ा था। आज 30वां दिन था और मेरा शौहर वाकई वापस लौट आया था। सबसे पहली नजर मेरे उस डब्बे पर पड़ी जो अभी तक मेरे तकिए के नीचे था। सलाम दुआ के बाद मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो शादी की रात क्यों गया था और अब वापस क्यों लौटा है। मैंने तो लोगों की बातें अब तक यही सुन रखी थी कि वो पागल है, लेकिन उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो पागल है। नाश्ते की टेबल पर सभी लोग थे। मेरे शोहर को देखकर मेरे जेठ और उनकी बीवियों के तोते उड़ गए। वो हैरान और परेशान उसका चेहरा देख रहे थे, लेकिन मेरे शोहर ने किसी की तरफ भी निगाह न उठाई। अपने माँ बाप से मिलने के बाद वो नाश्ते की टेबल पर आ बैठा। मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा करता, लेकिन जब भी मैं उसे कोई सवाल जवाब करती तो वो मुझे टाल देता। मेरे शोहर के आने के बाद वो डब्बा मेरे तकिए के नीचे से गायब था। जब मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उस डब्बे से क्या ताल्लुक है। जब तुम्हारा शोहर वापस लौट आया है तो अब उस डब्बे की बात को छोड़ दो। तुम्हें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि वो वापस आ गया है। बस ये कहकर उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आज तो सारा साथ जान कर रहूंगी। शाम के वक्त जब दिलावर कमरे में आया तो मैंने उससे एक और सवाल किया कि आप शादी की रात क्यों भाग गए थे और लोग तो आपको पागल समझते थे और आपके भाई सब आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इतने सारे सवाल करने के बाद आखिर में मैंने उसे धमकी भी दे डाली कि अगर आज आपने मुझे ना बताया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी बातें सुनने के बाद उसने एक ठंडी आह भरी और मुझे कहा कि तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ। हम लोग 3 भाई थे। मेरे वालिद को बहुत शौक था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन मेरे 2 भाइयों को बिल्कुल भी पढ़ने का शौक न था। और अपने वालिद के शौक को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई को अपनाया। मैं हर क्लास में फर्स्ट आता था। ये बात मेरे वालिदैन को बहुत खुश करती थी और वो मुझे मेरे दोनों भाइयों से ज्यादा प्यार देते। यही बात मेरे भाइयों को खटकती थी। जब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो मेरे वालिद ने कहा कि मेरे बाद मेरा ये बेटा सरदार बनेगा। तो मेरे भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगी। तब उन्होंने मुझे पागल करने वाली दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी और मैं तकरीबन नीम पागल हो चुका था। इस बात का पता जब मेरे वालिद को लगा तो वो बहुत दिल बर्दाश्त हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। एक दिन वो बाहर गए तो उनके सबसे बड़े दुश्मन दिल शेर खान, जो कि खाई में गिरा हुआ था, मेरे वालिद ने उसकी जान बचा ली। दिल शेर खान मेरे वालिद से इस कदर मरूब हो गया कि उसने अपनी दुश्मनी बुलाकर ये कहा, मैं अपनी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए देना चाहता हूँ। क्योंकि शेर खान ये नहीं जानता था कि मेरे 2 भाइयों की शादी हुई है और मैं नीम पागल हूँ। मेरे वालिद ने उसे बताना भी चाहा, लेकिन उसने ये कहकर खामोश करा दिया कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बेटे को पसंद आएगी। इस तरह दिल शेर खान ने तुम्हें रुखसत करके हमारे घर भेज दिया। मेरे वालिद मुझे मेरे भाइयों से बचाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मुझे शहर के इमाम मस्जिद, जो कि उनके दोस्त और डॉक्टर भी थे, उनके पास भेज दिया और वहीं पर ही मेरा इलाज और मुआवजा हो रहा था। शादी की रात उन्होंने मेरा इलाज किया और मैं 15 दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो गया। जब मैं नीम पागल हुआ था तो मेरे पास एक डब्बा हर वक्त मौजूद रहता था, जिसमें मेरी बचपन की तस्वीरें वगैरह थी और काफ़ी सारे खिलौने भी थे, जिनको मैं हर वक्त अपने साथ रखता था। जब मेरे वालिद मुझे डॉक्टर के पास भेज रहे थे तो उन्होंने मेरे साथ डब्बा ले लिया और मुझे कहा कि तुम 30 दिन के बाद जब वापस आओगे तो तुम्हें ये डब्बा मैं वापस कर दूंगा। और मेरी वालदा ने तुम्हें ये डब्बा इसलिए दिया ताकि तुम मेरा इंतजार करो। नौकरानी वो जानती थी 1-2 दिन तक मैं वापस आने वाला हूँ। इस डब्बे में मेरे खिलौने के साथ इतर लगा हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हें रात को नींद आ जाती थी और सुबह के वक्त तुम्हारा जिस्म भारी भारी होता था। वो नींद का इत्र था। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि तुम अपनी रात बेसुकूनी से गुजारो। मुझे ये सारी बातें मेरी वालदा ने बताई थी। जब तुमने मदरसे में दाखिला लिया तो मैं ठीक हो गया था और चुप चुप कर तुम्हें देखता था और फिर तुम्हारे सामने भी आने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। तुमने तो सिर्फ मुझे तस्वीरों में ही एक झलक देखा था। ये बात मुझे अम्मा ने बताई थी और ये सब सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कोई भाई अपने भाई के साथ इस तरह भी कर सकते हैं। अगले दिन हमारे घर में कहराम मच गया। मेरे दोनों जेठों ने किसी के साथ धांधली की थी और पुलिस उनको पकड़ कर ले गई और उसकी सजा अब कम से कम सजाए मौत या उम्र कैद होगी। ये बात उनकी बीवियों के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुई और उनका तमाम गरूर और फखर झाग की तरह बैठ गया। बुराई का अंजाम वाकई बुरा होता है। मैं अपने घर में आज बहुत खुश हूँ।